After getting into IIT, most students have a dream to do job in Microsoft and Google like big companies. But the reality is that only few people make it real. Although this year's placement stats are not so good because of the recession, still in this video we have 40 students who have been placed in Google, Microsoft like big companies, who will share their experience, how they made it and what mistake they did. So hello everyone, I am Saurabh, currently a second year undergraduate student at IIT Kanpur. 240 students are going to share their experience, so listen carefully because whatever they said is really very important. In the last they advised junior who are currently in first year, second year or third year. So first we have Rohit from civil department who placed in Google, and second we have Akshat who placed in Microsoft. First question we have, what do you want to say about the statement? Once you get admission in IIT, everything will be set. See, if you are coming to IIT, this will provide you the better opportunity, the best learning environment. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि everything is going to be set. तुम्हें ये opportunity provide करवाएगा. बाकी तुम्हारी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि तुम उस opportunity को grab कर पाते हो कि नहीं. You will get some more opportunity, but you still have to work hard enough to achieve something. कितनी बार स्टेज 10th के बाद बोला जाता है कि ये कर लो तो इतना हो जाएगा, ये कर लो 12th में बोलते हैं कि ये कर लो तो फिर सेट हो जाएगा, फिर कॉलेज में बोलते हैं. सो पर्सनली आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट. IITs are just a way to provide you a platform. ये ऐसा है कि the name, if you agree or not, whether everybody agrees with this or not, IITs do have a name, and this brand name actually helps people. So IITs are just a way to provide you a very good platform to kickstart your career. The number of students that you have, the people you are surrounded with, the alumni network that you have, IITs are very strong in that sense. So it is not ट्रू कि एक बार IIT चलेगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा. मेहनत वहाँ पे भी करनी है क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, एंड यू हैव टू कम्पीट विद देम एज वेल. यू हैव टू बी द बेस्ट आउट ऑफ देम एज वेल. सो बट अगेन जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ रेज्ड मोर. द किक स्टार्ट दैट यू गेट इज बेटर इन IITs एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, बट स्टिल यू हैव टू वर्क अ लॉट. अब IIT में आगे तो कॉम्पिटिशन भी उतना ही हाई हो गया, तो वहाँ पे भी उतना ही फाइट मारना. तो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बट या द IIT नेम has a really good impact in your career and everything. So yeah. Now we have second question. According to you, what matters, CPI or skills? दोनों पे दोनों मैटर करती है. तुम्हें स्किल्स सीखते सीखते CPI को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि देखो स्किल्स से 3-4 मंथ में सीख सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी CPI होती है वो तुम्हारा क्यूमुलेटिव होता है. ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि CPI और स्किल्स साथ में मेंटेन करके तुम चल सको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनियां होती हैं वो CPI क्राइटेरिया तुम्हारी लगाएंगी. तो एटलीस्ट तुम्हारे पास उतना CPI होना चाहिए कि तुम अपनी स्किल्स को शो कर सको उस कंपनी को. इसका आंसर तुम्हें अलग अलग मिलेगा और कई लोग ये भी बोलेंगे कि CPI बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बट ये मैं मानता हूँ गलत है. CPI प्लेज अ ह्यूज रोल. CPI एंड स्किल्स शुड बी बैलेंस्ड. स्किल्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क इन अ कंपनी एंड नोबडी इज गोना आस्क फॉर CPI आफ्टर सम टाइम, बट फॉर दैट स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू हैव अ गुड CPI. गुड CPI से क्या होता है, इट इज़ लाइक अ मैट्रिक्स ऑफ योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 4 years कि तुम लोग कॉलेज के प्रेशर में कितना काम कर पाए और कितना परफॉर्म कर पाए अमंग ऑल योर पीएस. तो 1000 लोग हैं मान लो तुम्हारे बैच में, तुम्हारे साथ जो आए थे, एंड you have a good CPI among them, तो it shows कि you were able to stand out and work hard and get good. मतलब उस जो पढ़ाया गया तो वो जितना भी कुछ बताया गया प्रेशर वाइज परफॉर्मेंस का या फिर जो भी एग्जाम वगैरह का, you were able to perform good. Although it is not a right metrics for the judgment of your skills and your interest, but it is a good metrics to show कि हाँ you were able to fight among all the peoples and get a good grade and perform well with along with other things as well. So CPI, although हर कंपनी ने क्राइटेरिया हटा दी और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. नोबडी इज गोना आस्क फॉर योर नंबर कि अच्छा तुम्हारा 9.8 है और 9.5 है तो हम 9.8 वाले को ही लेंगे. बट 9.5 एंड 9.8 हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट in terms of कि हाँ यार you will able to achieve something during the 4 years. So at least first to second year students should focus on CPI somewhat along with the skills so that आगे जाके उनको they do not face any BT. क्योंकि BT होता है बाद में. अगर तुम्हारा 6 CPI है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट करती है, पता नहीं चलता है. रिक्रूटर के दिमाग में रहते हैं इसका 6 है उसका 8 है तो 8 वाले को क्यों नहीं लूँ मैं, कुछ तो कहीं रहा होगा ना गड़बड़. तो या ऑल्दो इट इज़ अ नंबर बट इट मैटर्स समहाउ. The third question is that what challenges or difficulty did you face during the placement and how did you overcome it? देखो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज द कोडिंग राउंड टेस्ट. तुम्हारी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए मतलब मैंने क्या किया था पर्सनली कि मैं 3-4 मंथ पहले से लीड कोड की कॉन्टेस्ट लगाता था, लीड कोड प्रॉब्लम लगाता था. तो वो तुम्हें क्या करता है, एक अच्छा पैटर्न प्रोवाइड करवाता है जो कि इंटरव्यू में और कोडिंग राउंड टेस्ट पूछे जाते हैं तुमसे. तो कोडिंग वहाँ से अच्छी खासी हो गई थी मेरी. सेकंड थिंग जहाँ मैंने काम किया था वो था कम्युनिकेशन का. ठीक है, जो भी अगर तुम इंटरव्यू राउंड में जाते हो तो
तुम्हारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन होता है वो तुम्हारी इंग्लिश होता है। तो उस चीज़ को बेटर करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं अपने विंगो को अपना रिज्यूमे दे दिया था और वीकली 3 से 4 इंटरव्यू उन्हें देता था, जिससे कि कम्युनिकेशन के मेरी ठीक हो गई थी। थर्ड थिंग जहाँ प्रॉब्लम आती है वो होती है तुम्हारी रिज्यूमे जो भी तुमने बनाया है, ठीक है, तो वो तुम्हारा टू द पॉइंट होना चाहिए। उस पर जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सबके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट तुम्हारी रिज्यूमे से आता है, तो वो चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना। डिफिकल्टीज और लाइक जो भी परेशानी उस टाइम पे, द प्लेसमेंट प्रोसीजर इज वेरी फास्ट एंड क्विक एंड इट इज़ अ हैवॉक, कुछ भी हो रहा रहता है क्योंकि इट इज़ लाइक अ क्विक थिंग, यहाँ से यहाँ गई, इस कंपनी का देना, उस कंपनी का देना। इन माई केस आई हैड ओनली वन कंपनी इन स्लॉट वन दैट आई हैड टू क्लियर आउट, दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट। सो उसके साथ एक और कंपनी थी बट आई डिड नॉट सेट फॉर दैट, आई डिड नॉट क्लियर for that. So in my case, during the procedure at that particular day one, I did not face any such issues or difficulties, क्योंकि दिमाग था कि यार इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, वो राउंड्स जो चल रहे थे वहाँ दिमाग था। बट since I'm from the design department and in design the procedure is a bit different. You have to clear out design challenges, you have to prepare portfolios and you have to prepare everything कि how do you present your work. So the challenge or difficulty was beforehand, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे 4 डिजाइन चैलेंज एक साथ आ रहे हैं and those was spanned for like around 3 days, 4 days, 7 days भी था। तो the situation was difficult in that case, but जब उस mindset में रहते हो तुम क्लियर करने के, इंटरव्यूज क्लियर करने के और लगातार इंटरव्यूज देने में, तब इतना समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड सो क्लियर कि हाँ यहाँ से यहाँ जंप करना है, यहाँ से यहाँ जंप करना है, इस इंटरव्यू से इंटरव्यू में बैठना। सो एज सच ड्यूरिंग द day 1 and day 2 there was no havoc or no difficulties in that sense, because I have to make sure कि मैं कुछ और ना सोचूं। But before that the माहौल is very stressful for each and everyone and that is not cannot be expressed into words. Once you experience it, that's the only experience that you get. इसके बाद में खत्म, पहले खत्म, वही है जो एक्सपीरियंस है। And the last question is advice for the juniors who will be sitting in the placement after 1 year, 2 year or 3 year. 2 एडवाइस। फर्स्ट देखो, ट्राई करो कि तुम्हारी जो CPI हो 7+ कर पाओ। अगर 7+ पहले से है तो 7.5+ करने की कोशिश कर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनियां आएंगी प्लेसमेंट के टाइम पे उन पे जो CPI क्राइटेरिया रहेगा वो 7 के आसपास रहेगा, तो कोशिश करो कि 7+ हो सके कैसे भी करके। सेकंड चीज बोलूंगा कि मैं बहुत सारे फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, देखो कौन सा तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, SD अच्छा लगता है या एनालिस्ट या फाइनेंस या PM, और उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। यार मैं मतलब एडवाइस तो क्या ही दूँ, मतलब मैं भी खुद अभी एडवाइस ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज़ लाइक कि दिस इज हाउ आई फाउंड माई फ्लेयर और आई फाउंड माई थिंग टू फोकस ऑन। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए है कि ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स दैट यू कैन वर्क विद और यू कैन लर्न फ्रॉम। यूजुअली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक मैप बना हुआ है जो सीनियर्स ने बना के दिया कि ऐसा ऐसा करोगे तो यहाँ प्लेस हो जाओगे, ऐसा ऐसा करोगे तो यहाँ प्लेस हो जाओगे। उस चक्कर में लोग अपना अलग तरह से एक्सप्लोर करते ही नहीं हैं। लाइक आई डिड एक्सप्लोरेशन इन डिज़ाइन ऑन माई ओन इन माई बीटेक। अब मेरे और UI UX में कोई नहीं था मेरे सीनियर्स वगैरह से कहीं पे भी, तो आई ट्राइड इट आउट ऑन माई ओन एंड आई ट्राइड आउट मल्टीपल थिंग्स इन डिज़ाइन एज वेल, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह। तो पीपल डू कि हाँ सीनियर ने ये बोल दिया ऐसा ऐसा होगा और देखते आ रहे पैटर्न के यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, दे जस्ट डू दैट, दे डू नॉट एक्सप्लोर। एंड IITs आर मेंट टू बी एक्सप्लोर्ड। वहाँ पे इतना लोग है, इतना टैलेंट है, इतने प्रोफेसर्स हैं, दे डू नॉट गो टू डिफरेंट प्लेसेस। क्वांट में बोला ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, PM में बोलोगे ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। डोंट गो बाय दैट। फर्स्ट और सेकंड ईयर के बस इतना रूम है खेलने के लिए कि प्ले अराउंड विद डिफरेंट स्टफ्स एंड यू विल फाइंड समथिंग दैट सूट्स यू बेस्ट। क्योंकि वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट, बट अपने IITs में ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में तो नहीं होता है, वो कुछ और ही करते हैं अपना। तो वही है, उसके अलावा भी और चीज़ें एक्सप्लोर करो यार। मतलब जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि DS हो गया और अपना कोडिंग कर लिया या फिर क्वांट कर लिया तो हो गया खत्म। ट्राई टू एक्सप्लोर क्रिएटिव फील्ड्स एज वेल, ट्राई टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स सो दैट यू फाइंड समथिंग दैट सूट्स द बेस्ट फॉर यू। और थर्ड ईयर में आ गए तो ट्राई टू बिल्ड एन एक्सपर्टीज आउट ऑफ इट। एक बार ही तुमने एक्सप्लोर कर लिया तो यू नो कि तुमको ये जम गया, तो फिर उसके बाद इतना खोल दो उस सब्जेक्ट को, इतना उसमें घुस जाओ कि दैट यू आर द एक्सपर्ट एट इट, सो दैट व्हेन कंपनी कम फॉर फाइनल दे पिक यू बिकॉज दे नो कि यू आर द बेस्ट एट इट, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। बिकॉज IITs प्रोवाइड यू प्लेटफॉर्म, राइट? डिज़ाइन में हमारा लगा ऑल्दो इट इज़ एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट स्टिल they come by IIT name as I told in the first question, and they find the experts in their field, right? So they'll pick you. So try to build an expertise in third year, and fourth year focus on cracking something big. I hope you enjoyed this video and learned something. If you like this video, please share with your friends and subscribe our channel.